talk about an important topic that is called watchdog timer. So first of all, we understand what is watchdog timer. So watchdog timer is an electronic timer that is used to detect and recover from the computer multifunction. What do you mean? Just take an example that when a CPU is in a hang position, so we will restart with the CPU start or restart button, and as well with the mobile phone, we have used mobile phone daily in daily life, and for a lot for after some time that mobile phone behaves as an hang position, it will do nothing, so we will restart that mobile phone, and that mobile phone or computer are working properly. But if any aircraft or any other thing which is not placed in your location, or for example aircraft which is placed in a space for transferring information like weather, other information, etc., that aircraft hang over there. So then how will we restart that aircraft? So for restarting that aircraft, we will use a external hardware timer which is known as watchdog timer. Okay, sometimes watchdog timer is also called computer operating properly COP timer. Okay, during normal operation, the computer regularly resets the watchdog timer to prevent it for elapsing or a timeout. If due to hardware fault or program error or software problem, the computer fails to reset the watchdog timer, the timer will elapse and generate a timeout signal. That timeout signal is used to initiate corrective action or actions. That corrective action typically include placing the computer system in safe state and restoring normal system operation. Okay, this is the thing. This is the basic thing of that watchdog timer. So here we will see that firstly we know that the watchdog. What is a watchdog timer? The watchdog timer is a hardware timer which is automatically generate system reset if the main program neglect to provide periodically service it. Basically होता क्या है, जब हमारा कोई भी सिस्टम हैंग पोजीशन पे आ जाता है, सो जो है वॉचडॉग टाइमर क्या करता है, वॉचडॉग इंटरनली होता क्या है, इंटरनली ये होता है कि जो सिस्टम हैंग पोजीशन पे आ रहा है, मतलब हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है या प्रोसेसर जो है वो प्रॉपरली जो पीरियोडिक पल्स ट्रेन दे रहा था वॉचडॉग टाइमर को रीसेट करने के लिए, वो नहीं प्रोवाइड करता एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. सो फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब वो प्रोवाइड नहीं करता है, सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर वॉचडॉग टाइमर आफ्टर दैट टाइम पीरियड एक सिग्नल जनरेट करता है. वो सिग्नल क्या करता है, वो सिग्नल जो है माइक्रो कंट्रोलर के रीसेट बटन पे कनेक्ट होता है, उस रीसेट बटन पे जाता है और माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्राम को जहाँ से माइक्रो कंट्रोलर वर्क कर रहा है उसको रीसेट कर देता है और उसको फिर रीलोड की कंडीशन मिलता है, जैसे अक्सर हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में करते हैं. ओके, it is so what is it used? So watchdog timer is often used to automatically reset an embedded system device or a CPU that hangs because of the software or hardware fault. Okay, this is the basic diagram of watchdog timer. That a computer or a CPU is connected to a watchdog timer to send a periodic pulse regularly in a time interval. ठीक है, when the CPU or computer send this periodic signal to watchdog timer reset it. Okay, if this periodic pulse does not send by the computer to the watchdog timer to reset the time period in a definite time period, this watchdog timer send a signal to the reset into the computer for resetting the main program. This is the basic block diagram. This is the basic block diagram of watchdog timer working. Okay. In the next diagram, the watchdog timer in this diagram, the watchdog timer is in 3 stages.
So what happened here? Same thing, when the computer generates a clock pulse, when a computer generate a regular periodic clock pulse, in this stage the watchdog timer has a 3 stage. ओके हाँ, एक चीज़ और कि दिस जो ये आपका कंप्यूटर सिग्नल पीरियोडिकली सिग्नल जनरेट कर रहा है, इस सिग्नल और उससे जो वॉचडॉग टाइमर रीसेट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग किकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं. ओके तो इन सेकेंड वाले स्टेज में क्या हो रहा था? सेकेंड वाले स्टेज में होता यह है कि कंप्यूटर सिग्नल को जनरेट करता है वॉचडॉग को किक करने के लिए मतलब रीसेट करने के लिए. लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ये सिग्नल नहीं आता है तो ये क्या करता है, ये जो वॉचडॉग टाइमर है ये पहले तो जो भी उससे पेरिफेरल्स कनेक्टेड हैं उसको जो है उसको जो है हटा देता है, मतलब डिस्कनेक्ट कर देता है, ताकि जितने भी पेरिफेरल्स हैं उनको बचाया जा सके. ये प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी सिस्टम दिए हैं, उसमें पावर सप्लाई रेगुलरली प्रोवाइड हो रही है बाय द डीसी बाय एसी, तो पल्सेस जनरेट होती है, उसके थ्रू भी अदर पेरिफेरल्स को खराब होने का खतरा रहता है. तो इस स्टेज में क्या करता है जो टाइमर होता है, ये एक स्टेप लेता है, एक करेक्टिव एक्शन लेता है, ताकि जितने भी पेरिफेरल्स हैं उनको हटाया, मतलब रीसेट किया जा सके, हटाया जा सके, कनेक्शन तोड़ा जा सके. एंड वही और ये वही सिग्नल जिससे वो जो एक्शन है, वो करेक्टिव एक्शन है जो परफॉर्म करता है, वही सिग्नल सेकंड स्टेज के टाइमर को देता है उसको इनेबल करने के लिए. उसको इनेबल करता है. अगर ये भी उसी टाइम ड्यूरेशन में रीसेट नहीं होता, देन फिर अगेन इस ड्यूरेशन में भी सेम प्रोसेस होता है कि जो आपका पेरिफेरल्स हैं वो पेरिफेरल्स अगर कोई कनेक्शंस हैं उनको रीसेट कर देता है. एंड देन अगेन वो इनेबल थर्ड स्टेज पे दे देता है. ये 3 स्टेज वॉचडॉग टाइमर है. जब ये थर्ड स्टेज वॉचडॉग टाइमर में भी हमें पीरियोडिक पल्स नहीं मिलती है, देन ये जो थर्ड स्टेज वाला टाइमर है, यानी वॉचडॉग टाइमर का जो थर्ड स्टेज है, वो एक सिग्नल जनरेट करता है, दैट इज अ रीसेट सिग्नल विच इज़ गिवन टू द कंप्यूटर और CPU टू रीसेट द मेन प्रोग्राम. ओके, दैट दिस सेकेंड डायग्राम एक्सप्लेन. Okay, this is the basic 1 stage watchdog timer and this is the 3 stage watchdog timer. Okay, sometimes watchdog timer मैंने बताया, watchdog timer को हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रॉपरली टाइमर भी बोलते हैं. ये एक सबसे बड़ी बात कि ये जो वॉचडॉग टाइमर है, दिस वॉचडॉग टाइमर इज अ डिवाइस दैट असर्ट अ रीसेट आउटपुट. मैंने आपको बताया रीसेट आउटपुट इफ इट हैज़ नॉट रिसीव अ पीरियोडिक पल्स सिग्नल फ्रॉम अ प्रोसेसर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ओके, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड. कैसे होता है ये? इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय अ डिजिटल सिग्नल आउटपुट. दैट डिजिटल सिग्नल आउटपुट कहाँ से इम्प्लीमेंट किया जाता है? डिजिटल सिग्नल आउटपुट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है. दैट सिग्नल आउटपुट इज GPIO. ओके, फ्रॉम द प्रोसेसर में ये जो सिग्नल पिन होती है ये आपकी प्रोसेसर में होती है, फीडिंग इनटू अ वॉचडॉग इनपुट. VDI वॉचडॉग टाइमर में एक वॉचडॉग इनपुट पे ये GPIO से ये जो डिजिटल सिग्नल आउटपुट है ये कनेक्ट होता है ऑफ एक्सटर्नल वॉच. ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि अभी हम आपको आगे बताएंगे कि 2 तरीके से हम लोग वॉचडॉग टाइमर को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. पहले अगर ये एक्सटर्नली हमें वॉचडॉग टाइमर हमने ले रखा है, मतलब अगर कोई डिवाइस है जिसके इंटरनल फॉर्म में वॉचडॉग टाइमर नहीं है, एक्सटर्नली हमने उसमें वॉचडॉग टाइमर को कर रखा है, ऐसी डिवाइसेस उस डिवाइस में कैसे हम कनेक्शन करते हैं? रीसेट पिन, उसके जो हमारा सुपरवाइज़र होता है या जो इंटीग्रेटेड चिप होती है उसका रीसेट पिन वॉचडॉग टाइमर के रीसेट पिन से कनेक्ट होता है. सप्लाई के लिए 1.8 वोल्ट की सप्लाई हम इसको प्रोवाइड करते हैं. जो सुपरवाइज़र या इंटीग्रेटेड टाइमर होता है, वो टाइमर जो है उसका जो आउटपुट है वो वॉचडॉग टाइमर किसके अंदर? माइक्रो कंट्रोलर के अंदर है, उसके नॉन मास्केबल इंटरप्ट के पॉइंट से कनेक्ट होता है. और जब ये आउटपुट यहाँ पे आता है उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ये कंट्रोलर होता है वो जो आउटपुट पिन GPIO पिन ये कनेक्ट करता है, यह यहाँ से सिग्नल जनरेट करता है, यानी यहाँ से रेगुलर पल्स देता है. इस जगह से ये रेगुलर पल्स देता है. किसके लिए देता है? वॉचडॉग टाइमर को रीसेट करने के लिए. जब ये नहीं रिसीव होता है तो जो WDO पिन है, लो पिन है, ये एक इंटरप्ट ये एक्नॉलेज जनरेट करता है. कहाँ जनरेट करता है? नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन पे जनरेट करता है. ठीक है, क्या जनरेट करता है कि हमें सिग्नल रिसीव नहीं हुआ है तो हम रीसेट सिग्नल जनरेट कर रहे हैं. देन आफ्टर ये रीसेट सिग्नल जनरेट करता है और माइक्रो कंट्रोलर के मेन प्रोग्राम को रीसेट कर देता है.
ओके अब जो प्रोसेसर होता है वो मैंने आपको बताया पीरियडिकली सेंड करता है वॉचडॉग टाइमर को, जो कि इंडिकेट करता है अगर हमारा जो प्रोसेसर है वो वॉचडॉग टाइमर को पीरियडिकली ये सिग्नल को जनरेट करे, मैंने पल्सेस जनरेट करे सिस्टम को, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रोसेसर है या कंट्रोलर है वो हमारा प्रॉपर ऑपरेटिंग पोजीशन पे। अगर वॉचडॉग टाइमर जो है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम पे सिग्नल को रिसीव नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है माइक्रो कंट्रोलर के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पार्ट में। तो उस दौरान क्या करता है जो वॉचडॉग टाइमर है वो रीसेट पिन असर्ट कर देता है, रीसेट आउटपुट सिग्नल को जनरेट करता है। ये जो रीसेट आउटपुट है ये रीसेट करता है सिस्टम को, मैंने आपको बताया, और जो प्रोसेसर है वो एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, हैंग पोजीशन या फ्रीज पोजीशन या रीसेट या खुद को रीसेट कर देता है। ओके अब हम इस डायग्राम में ये क्या बता रहे हैं, इस डायग्राम में ये बस ये शो किया जा रहा है कि अगर मतलब ये शो करते हैं इस डायग्राम्स के थ्रू, ये हम शो कर रहे हैं कि जो पल्स अगर वॉचडॉग टाइमर को विद इन अ टाइम पीरियड पल्स रिसीव हो रही है तो आउटपुट पिन किस पोजीशन पे होगी, और अगर नहीं रिसीव हो रही है तो आउटपुट पिन किस पोजीशन पे होगी। तो देखिए आप फर्स्ट पल्स जो वॉचडॉग इनपुट है, ये जो पल्स है जो कि आपकी माइक्रो कंट्रोलर पे पिन पे होती है, ये जब यहाँ से GPIO पिन से जब सिग्नल जनरेट होता है इस VDI पे, ठीक है, रेगुलर टाइम इंटरवल पे पहुँचता है, तो उस समय पे जो वॉचडॉग वॉचडॉग टाइमर है इसका जो आउटपुट है वो आपका NMI मास्क केबल पे केवल एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के लिए देता है, मतलब उसको रीसेट कर देता है और एक्नॉलेजमेंट देता है कि रीसेट हो गया। जब ये पिन मतलब ये जो आपका GPIO पिन है ये इस सिग्नल को रेगुलरली जनरेट नहीं करता, जनरेट करने मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में जनरेट नहीं करता है, तो होता क्या है उस टाइम पीरियड फ्रेम में नहीं जनरेट कर रहा है, उसके बाद जनरेट कर रहा है, तो जो ये आउटपुट पिन है ये VDO वॉचडॉग आउटपुट पिन है, ये एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है, किसको कर देता है, माइक्रो कंट्रोलर को सेंड कर देता है कि जो हमारा सिग्नल है, जो आपका रेगुलर सिग्नल है रीसेट करने के लिए टाइमर को, टाइम पीरियड को वो मतलब नहीं है, रिसीव हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद वो रीसेट पिन रीसेट कर देता है, सिग्नल जनरेट करके उसको रीसेट कर देता है। ये बताया गया है जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ। अब बचा ये कि अब ये दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि जब हमारा जो मान लीजिए कोई हार्डवेयर अभी सिस्टम है हमारे पास है, अगर उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, हैंगिंग पोजीशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको तो हम लोग वहाँ पे बैठ के रीसेट कर सकते हैं। बट ऐसा कोई सिस्टम जैसे कि एयरक्राफ्ट है, स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, वो जो है वहाँ पे हमारे पास तो है नहीं, तो इस वजह से उसको हम वो अगर काम करते करते उसमें कोई इशू आ जाता है पल्सेस की वजह से, पावर सप्लाई की वजह से या अदर एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ से रीसेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट इस टाइमर का इस्तेमाल उसी दौरान हम लोग करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंस इसका ये है कि जो वॉचडॉग टाइमर है वो एक मेथड प्रोवाइड करता है, एक अल्टरनेटिव मेथड प्रोवाइड करता है टू रीसेट द प्रोसेसर हुज सॉफ्टवेयर हैज़ बीन एक्सपीरियंस टू फ्रीज और हैंग पोजीशन। ओके, ये लिखा हुआ है। ओके एंड जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है वो एडजस्टेबल होता है, एडजस्ट करता है टाइम आउट इंटरवल को, जो कि आइडेंटिफाई करता है इस सॉफ्टवेयर फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है, विद इन अ जस्ट फ्यू मिली, ये काम फ्यू मिली सेकेंड से मिनट तक का भी हो सकता है, और उसके बाद उसको रीसेट कर देता है, सिस्टम रीसेट कर देता है। ये फंक्शनैलिटी बेसिकली जो हमारी होती है वो एम्बेडेड सिस्टम में होती है, स्पेशली ये फंक्शनैलिटी एम्बेडेड सिस्टम में या रिमोट सिस्टम्स में यूज़ की जाती है, जहाँ पे मैनुअली हम सिस्टम को रीसेट नहीं कर सकते। अब हम ये देखते हैं, अभी तो हमने बताया कि वॉचडॉग टाइमर होता क्या है और कैसे वर्क करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया है कि हम अपने मान लीजिए कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें वॉचडॉग टाइमर होगा। अभी कुछ सिस्टम है कि हम मतलब हमारे पास वॉचडॉग टाइमर मेरे पास सिस्टम है लेकिन उसमें वॉचडॉग टाइमर नहीं है, तो हम उसको एम्बेडेड कैसे करें, अपने सिस्टम में हम वॉचडॉग टाइमर को एम्बेडेड यानी इम्प्लीमेंट कैसे करें। सो बेसिकली जो वॉचडॉग टाइमर है इसको इम्प्लीमेंट करने के दो मेथड्स होते हैं। देयर इज टू मेथड टू इम्प्लीमेंट द वॉचडॉग टाइमर। फर्स्ट मेथड, that method is called using processor with the integrated watchdog। ऐसा प्रोसेसर कंसीडर कर लें, ऐसा कंट्रोलर लें जिसमें इंटरनली आपका जो है वॉचडॉग फंक्शनैलिटी हो। एग्जांपल के तौर पे MSP 430 MSP 430 F5529 सीरीज़ यानी F5th सीरीज़, आपकी जो MSP की 5th सीरीज़ आई है उसमें ये फैसिलिटी इंक्लूड है, जिसमें कि वॉचडॉग टाइमर ऑलरेडी हार्डवेयर में इंक्लूडेड है, ठीक है।
फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो इसमें हमें इसकी वजह से क्या होता है कि हमको एक्सटर्नल डिवाइस एक्सटर्नली हमें वॉचडॉग टाइमर को जो है इम्प्लीमेंट नहीं करना होता है, अलग से नहीं लगाना होता है, जिससे बेनिफिट ये होता है कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। बट इस मेथड में प्रॉब्लम क्या आती है, द मेजर प्रॉब्लम इज अकर इन दिस मेथड इज जो इंटीग्रेटेड वॉचडॉग है वो हमेशा हमारे अकॉर्डिंग यानी हमारे डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, क्योंकि जो उसमें जो कोड इशू, उसमें जो कोड होता है यानी सॉफ्टवेयर होता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो MCU होता है उसका जो, क्योंकि MCU हमारा मल्टी फंक्शन होता है, वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाता, उस एविडेंटली इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। ओके ये कौन से बार प्रॉब्लम आता है, जब हमने ऐसा कोई सिस्टम ले रखा है, ऐसा कोई प्रोसेसर ले रखा है जो कि जिसमें कि वॉचडॉग टाइमर ऑलरेडी हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब और क्या प्रॉब्लम है कि हम इस तरीके का सिस्टम होता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर कोड्स लिखे जाते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं कि जो वॉचडॉग है वो खुद ही जो है डिटेक्ट कर सके कोई भी फॉल्ट, जो फ्रीज पोजीशन या हैंगिंग पोजीशन को खुद ही फ्रीज कर सके, मतलब उसको खुद ही डिटेक्ट कर सके। और इसके लिए क्या होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप मॉनिटर करने पड़ते हैं वॉचडॉग टाइमर को एक रैंडम मैनर में, जो कि हेल्प करता है कि जो एरर्स क्रिएट हो रही हैं कोड में वो ना शो हो। ओके ये तो पहला मेथड है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इज यूजिंग अ वोल्टेज सुपरवाइजर। एक दूसरा मेथड है, ऐसा कंट्रोलर आपके पास है जिसमें कि वॉचडॉग टाइमर इम्प्लीमेंट नहीं है, तो आपको अगर उसके साथ वॉचडॉग टाइमर को अटैच करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज सुपरवाइजर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये वोल्टेज सुपरवाइजर एक्चुअल में जो होता है वो इज TS सीरीज जो होती है इसकी, वो आपकी होती है TSS सीरीज होती है। मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था, दिस डायग्राम दिस इज अ हाई एक्यूरेसी वोल्टेज सुपरवाइजर विद द इंटीग्रेटेड टाइमर TPS3110। दिस इज द सुपरवाइजर। ये एक एक्सटर्नल वोल्टेज सुपरवाइजर है जो कि वॉचडॉग टाइमर, जब हम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ अगर वॉचडॉग टाइमर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली ये जो सुपरवाइजर है ये वॉचडॉग टाइमर की फंक्शनैलिटी को अलाउ करता है या अलाउ करता है और मॉनिटर करता है दोनों को। क्या सब मॉनिटर करता है, इसकी सप्लाई वोल्टेज को और वॉचडॉग सिग्नल को, जो कि एक्सटर्नली आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, इसको प्रोवाइड करता है। इस मेथड में होता क्या है कि अगर मान लीजिए इसमें इस दोनों को मॉनिटर तो कर रहा है, बट इफ़ द इंटरनल वॉचडॉग ऑफ द प्रोसेसर, मतलब मान लीजिए प्रोसेसर में कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ जाए प्रोसेसर में, तो क्या होता है कि वो जो आपका जो वोल्टेज सुपरवाइजर है वो डिटेक्ट करता है पल्स को, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है जो एक्सटर्नल वॉचडॉग टाइमर है उसमें एक डिटेक्शन लेवल को ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं जिसकी तरफ से जैसे कि हम वॉचडॉग टाइमर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि वॉचडॉग टाइमर क्या होता है, कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी, और इसको हम लोग कैसे अपने एम्बेडेड सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। Thank you.